if I want to buy a new office, what things I should not do when I want to pick and choose a particular property. अभी तक हम घर के अंदर की बात कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट. यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आवर सराउंडिंग्स आल्सो मैटर. Do you really think that if your house is not vastu aligned, every person in the family might go through some mental issues or emotional traumas or any kind of issues? Yes and no. Yes, why? Because अगर तकलीफ है तो सिम्टम तो आना ही है. नो, बिकॉज हर किसी को नहीं आएगा और समय का भी कुछ पता नहीं. What not to do in your house to keep yourself, aligned with whatever opportunities coming your way. So, first of all, since now our builders, our architects, they give master bedroom in the southwest, thinking कि वो owner of the house है तो master room होना चाहिए, and with that they make a mistake of giving big balconies. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में. आज का जो एपिसोड है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज इन दिस एपिसोड वी आर गोना कन्वर्स अबाउट स्पेसेस, not about how it looks but how it makes you feel. So today's guest is Ashi Makhija, who is a founder of Panch Tattva, and we will be understanding a lot about why it is important to have a Vastu compliant house space, office space, or your entire building. Welcome to Ek Soch, Ashi ji. Thank you so much, Nirali. So as we rightly say that, whatever work you do or whatever business you want to start, it starts with Ek Soch, one idea that changed your life. So what was that one idea which changed your life 360? So it started few years back. So we've been practicing interiors architecture for quite some time now. A time came when we wanted to renovate our house. एंड होता है ना, खुद का घर करना है तो सारे अरमान पूरे करने हैं. सो बहुत अच्छे से दिल से घर रेनोवेट किया. एंड जैसे जैसे टाइम बीतता गया रेनोवेशन के बाद, आई फेल्ट अ डाउनफॉल इन माय करियर. वर्क स्टॉप कमिंग इन. आता भी था तो ऐसा लगता था कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इट्स टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट, एंड इट वाज वेरी unusual for me because we were already established in the market. तो ऐसा कुछ challenge, it was very shocking for us. So then it hit me bad, emotionally, mentally. I started getting panic attacks. मुझे anxiety होने लगी. Started doubting myself. Felt like a failure. Oh. So वो phase चल रहा था, and then suddenly I came across law of attraction. Negative हो गई थी बहुत, तो लगा चलो ठीक है, try करते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी. इट वॉज एन आई ओपनर फॉर मी कि मैं सिर्फ क्लेम करती हूँ दैट आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, बट मैंने अंदर अपनी कितनी नेगेटिविटी भर के रखी है. सो ड्यूरिंग दैट कोर्स आई रीअलाइन माई सेल्फ विद द यूनिवर्स. आई गॉट बैक इन टू द पॉजिटिव एनर्जी. And then after the completion of the course, randomly, I was just scrolling through Instagram and I see a course of 99 rupees, a scientific logical vastu. I said, वैसे भी फालतू बैठे हैं, कुछ करने को नहीं है. Let's try it out. That changed my perspective towards life. And I realized कि मैंने क्या क्या blunders किए थे. तो वहाँ से जो 360 degree life change होना शुरू हुई, and now I'm sitting in front of you. That's wonderful. So when I was studying about your entire journey and all, I've seen that you have spent decades into architecture and interiors, right? So and you said that जब मैं अपना घर renovate करना शुरू हुआ, again आपकी journey में वो downfall आना शुरू हुआ, right? So there are a lot of people who don't really understand कि नहीं यार, ये changes से तुम्हारी जिंदगी काफ़ी emotionally भी affect हो सकती है. So people, they don't believe that ऐसी चीज़ें हो सकती है. So would you like to say something to them that why it is important to understand that when you're creating a house, what all things they need to consider? Yeah. So
I will relate to this, what others feel, because I was also in that situation back then. बिल्कुल भी वास्तु का कुछ भी inclination नहीं था वास्तु की तरफ, कोई resonance नहीं था, क्योंकि कोई logic नहीं था, कभी किसी ने ढंग से समझाया नहीं. तो मैं बिल्कुल relate कर पाती हूँ उन लोगों से. वास्तु is nothing but space planning. हम इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स स्पेस प्लान करते हैं टू गिव अ ब्यूटिफुल लाइफस्टाइल टू द क्लाइंट. उसमें सिर्फ आपको हार्मनी ऐड करनी है, दैट इज इट. व्हेन यू अलाइन अ स्पेस एज पर द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, दैट इज ऑल इज वास्तु अबाउट. एंड यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Correct. So, I mean, when you talk about 5 elements, I'm sure, जैसे I am totally naive, मुझे नहीं पता है कि कैसे होना चाहिए 5 elements. So, what all things they need to consider? Like, which are the 5 position of their houses which are very important, और वहाँ पे वो changes नहीं होने चाहिए. श्योर. सो 5 एलिमेंट्स इज वन कॉन्सेप्ट जो हमारे धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश है, जिससे हम खुद बने हैं, हमारा शरीर बना है, पूरी सृष्टि बनी है. एक वो चीज होती है. और दूसरा होता है कि कभी भी आप कोई नई प्रॉपर्टी में हाथ डालते हो, खरीदते हो, रेंट पे जाते हो, या फिर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को रेनोवेट करते हो, आपको कुछ ऐसे जोन्स हैं, क्रिटिकल जोन्स हैं, फ्रेजाइल जोन्स हैं, जिनका ध्यान रखना है. नॉर्थ ईस्ट, वहां पे किचन टॉयलेट ना हो. साउथ वेस्ट, वहां पे भी किचन टॉयलेट एंट्रेंस ना हो. घर के ब्रह्मस्थान के ऊपर कोई लोडिंग ना हो, कोई हैवी फर्नीचर पीस ना हो, कोई पिलर ना हो, कोई कॉलम ना हो. ये 3 चीजें भी अगर आपने देख ली बेसिक, तो भी कहते हैं 50-60% things can be handled later on through vastu remedies, through corrections, through alignment of space. So you said in your journey, जैसे आपने changes किए आपके घर में, फिर जब आपने renovation किया, you started getting that downfall, okay, and then you eventually realized. तो वो realization कैसे हुआ कि यार घर में मैंने changes किए, उसकी वजह से ये चीज हुई है? So वो बड़ी शर्म आती है बताने में. But so for example we have living room in the north. So north में मैंने red bricks लगा दिए. Now north is the zone of water. It is one of the lightest zone. Northeast, northeast, these are few zones which are kept open, light, no dark colors, no heavy colors. वहां पे हमने बड़ी सी अच्छी सी 8 फुट बाय 10 फुट की एक ब्रिक वॉल कर दी रेड. सो इट गिव्स एंगर, वो फ्लो को भी रोकता है, चाहे वो पैसे का फ्लो हो, अपॉर्चुनिटीज का फ्लो हो. उसके अलावा हमने साउथ ईस्ट में बड़ी बड़ी विंडोज खोल दी. सो साउथ ईस्ट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द वुमेन ऑफ द हाउस, ओके, योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो वहां पे भी मुझे हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो गए बिकॉज ऑफ दैट ब्लंडर विच आई डिड. देन साउथ में आई इंट्रोड्यूस्ड ग्रे कलर. ग्रे इज अगेन अ वाटर एलिमेंट. तो जब वाटर अग्नि की दिशा में आता है तो वो इल्यूजन देता है, फियर्स देता है. तो ये सारे ब्लंडर्स वी डिड अननोइंगली. या. So when did you realize that ये सारे blunders, when you started, I'm sure that you deep dived into studying more about how Vastu can be helpful to renovate your entire house, right? So when was that time जहाँ पे आपको लगा सीखने के टाइम पे that something that was very shocking when you were studying that particular topic? So जैसे जैसे मैं सीखती गई, एवरीथिंग स्टार्टेड मेकिंग सेंस. जो भी मुझे सिम्टम्स आ रहे थे एंड जहाँ जोनल डिस्टर्बेंसेस थे इन टर्म्स ऑफ कलर्स और एलिमेंट्स और यू व्हाट यू कॉल इट फंक्शनैलिटी, एवरीथिंग स्टार्टेड मेकिंग सेंस, एवरीथिंग स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस. जैसा जैसा सीखती गई वैसा वैसा उसको मैं सुधारती गई. इट टुक मी ऑलमोस्ट अ ईयर टू रेक्टिफाई, क्योंकि सोच समझ के करना था. और अपने खुद के घर का सवाल है. तब तक तो मैं इसमें करियर बनाने का सोचा भी नहीं था मैंने. इट वाज जस्ट अबाउट रेक्टिफाइंग योर ओन स्पेस टू गेट योर लाइफ इन ट्रैक. I'm sure that ये सीखने के बाद what was the first thing that you did? You renovated you started making changes to your house. Yes. So what of changes that you realized that started working positively for you? Everything, in fact, right from opportunities, conversions. So इसमें क्या होता है, वास्तु is a process.
एक तो होता है कि आप घर को वास्तु कंप्लायंट बनाते हो. You will be surprised to know that you can achieve your desires. You can achieve your aspirations through Vastu. Once I treated my house, I started working on my aspirations. कि मुझे काम चाहिए, काम आ रहा है. काम और आने के लिए मुझे अपने कनेक्शंस पे वर्क करना है. I started treating my ईस्ट. ईस्ट को मैं एनहांस करने लगी. ओके. अब काम भी आ रहा है. अब क्या चाहिए? अब फेम चाहिए. करेक्ट. तो फेम के लिए साउथ को एक्टिवेट करो. तो ऐसे करके एक जोन करके आफ्टर द बेसिक वास्तु करेक्शन आई स्टार्टेड एनहांसिंग टू फुलफिल माय एस्पिरेशंस. Wow. So this is something which is, I mean, this is all science, right? All science, all science. People try and, I think that यार ये सारी चीज़ें अगर चेंजेस कर भी रहे हैं शायद हमको इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल आई शेयर माई एक्सपीरियंस ऑल्सो. सो आई हैड माई प्री स्कूल राइट. ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे अचानक से डाउनफॉल आना लगा. लाइक teachers started leaving, parents were not coming in for admissions and all. So what I did is to try and find out solutions. So I went to a vastu consultant. He gave me a lot of things which I had to change. I made all the changes, but then somewhere I was not getting that result. I don't know why. Okay, so I really want you to throw some insights on that, after making those kind of changes also, is it possible कि 100% आपको result मिलता है? See, there are a lot of factors involved in it. पहली चीज है कि सामने वाला जो जिनके पास आप गए, I'm nobody to question someone, but I also cannot validate कि उनकी practice कितनी authentic थी, कितनी अच्छी थी. दूसरा, कभी कभी क्या होता है, वास्तु इज सो डीप दैट यू हैव टू टेक प्रोफेशन इनटू कंसिडरेशन व्हेन यू आर डीलिंग विद द क्लाइंट. फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं किसी का क्लिनिक कर रही हूँ और उनकी शिकायत ही यही है कि मेरी दवाइयाँ लगती नहीं है क्लाइंट को या पेशेंट्स को. अगर उनका टॉयलेट ही नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है, जो कि दिशा लॉर्ड धन्वंतरी की है, जो हेल्थ के देवता हैं. अब हेल्थ के देवता कौन हुए? आपके डॉक्टर्स ही हुए. अगर वो ही जोन कॉम्प्रोमाइज्ड है तो बहुत सारी चीजें होती है वास्तु को एनालाइज करने की. एंड ऑल्सो व्हेन आई टॉक अबाउट माय प्रैक्टिस, फॉर मी वास्तु इज अ प्रोसेस. कोई भी कंसल्टेंट किसी के यहाँ जाके रेमेडीज करके आ जाता है, मेरा काम हो गया. बट दिस इज नॉट हाउ आई वर्क. आई विल कीप calling the client every 45 days, give me update. कभी कभी रिजल्ट 3 दिन में भी आता है, कभी कभी 6 महीने भी लगते हैं, कभी कभी साल भर भी लगते हैं. डिपेंड करता है प्रॉब्लम कितनी सीरियस है या कितनी ज्यादा पुरानी है. So there are a lot of aspects because of which you get result, you don't get result. A lot of thing changes, when you have this vastu aligned house. सो हमने भी काफ़ी सारे चेंजेस किए थे और घर में भी काफ़ी चेंजेस किए. सो व्हेन टू आइडेंटिफाई दैट यू नीड अ हेल्प फ्रॉम अ वास्तु कंसल्टेंट बेसिकली व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज यू वांटेड टू वर्क. See, the best would be to introduce a vastu consultant or a vastu interior designer right at the construction stage. इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन से भी पहले लैंड सिलेक्शन. आई अंडरस्टैंड मुंबई में तो वैसा पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप घर खरीदने की या रेंट पे लेने की सोच रहे हो तो उसको डिसाइड करने से पहले ही यू शुड गेट द वास्तु कंसल्टेंट इनटू पिक्चर. बिकॉज अगेन सेम लॉजिक, वो आपका करियर, आपकी करंट रिलेशनशिप situation in the house with other family members, your health conditions and your aspiration, ये ध्यान में रख के आपको प्रॉपर्टी सजेस्ट करेगा. So what are the top 3 things that a person should consider प्रॉपर्टी खरीदने के पहले? नॉर्थ ईस्ट, नो किचन टॉयलेट. इनफैक्ट एंट्रेंस भी अवॉइड करो. साउथ वेस्ट, बड़े बड़े विंडोज ना हो वहाँ पे, एंट्रेंस बिल्कुल ना हो, किचन ना हो, टॉयलेट ना हो, एंड ब्रह्मस्थान. अगर आप ये चीजें भी देख लेते हो, अगर दिस इज ऑल गुड टू गो, बाकी के लिए तो हम बैठे ही हैं. What is Brahmastan? Brahmastan is basically the center of your property. Okay.
तो अब इसमें थोड़ा वैदिक इंसाइट देना चाहती हूँ। ब्रह्मस्थान वो जगह है किसी भी प्रॉपर्टी की जहां से क्रिएशन होता है, बीज उत्पन्न होता है, जिसको हम बोलते हैं कि इट इज गवर्न्ड बाय ब्रह्मा। ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तो अगर कभी भी घर के सेंटर में कोई लोडिंग आ जाता है, टॉयलेट आ जाता है, किचन आ, किसी भी तरह का ब्लॉकेज आ जाता है, तो जब अगर हमारे दिमाग में कोई बीज पनपेगा ही नहीं तो हम आगे फंक्शन करेंगे कैसे? So that is the reason why the center of the property should be open, clear from furnitures. So these are few things which, if taken care of, काफी हद तक प्रॉब्लम्स मैनेजेबल हो जाती हैं संभालना. Very rightly said. So I just, I'm just recollecting one of the things when I met one of the Vastu consultant. उन्होंने मुझे ये बोला कि निराली, mirror plays a very important role. How relevant is that? It does. Mirror is a water element. आप उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखते हो, पानी में भी आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हो, तो मिरर इज अ वाटर एलिमेंट. पानी की दिशाएं होती हैं नॉर्थ ईस्ट, मैक्सिमम आप उसको ईस्ट तक ले जा सकते हो. जब भी मिरर दूसरे डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल अगर साउथ में आ जाए, इल्यूजन दे सकता है, फोबियाज दे सकता है. साउथ वेस्ट में मिरर आ जाए, वाटर एलिमेंट, साउथ वेस्ट दिशा होती है अर्थ की, स्टेबिलिटी की, मिट्टी की. अगर पानी मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी ढीली हो जाएगी, हमारी स्टेबिलिटी हिल जाएगी. तो जहां पे लोग बड़े मिरर्स डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज करते हैं, वॉल आर्ट के लिए यूज करते हैं, बैकस्प्लैश के लिए यूज करते हैं, तो फॉर देम नॉर्थ टू ईस्ट इज अ सेफ प्लेस. उसके अलावा कोशिश करो कि बाकी जो दिशाएं हैं, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इन दिशाओं में मिरर्स छोटे ले लो. Okay. So all this practices, is it different for office? Is it different for home where you stay? Is it different for builders? Yes, absolutely. वास्तु में जरूर we have guidelines, but there is no thumb rule. ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आपके घर का वास्तु किया और आपको बोला आपका लॉकर वेस्ट में होना चाहिए, तो वही मैं आपके ऑफिस प्रीमाइसेस में वेस्ट में रखाऊंगी. नहीं, आई विल आस्क यू कि आपका कैश का काम है या सब बैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं. अगर आप मुझे बोलोगे कि आशी मेरा सारा काम कैश का है, तो फिर आपका कैश काउंटर या आपका जो गल्ला जो हम बोलते हैं रिटेल स्टोर्स में जो हम लगवाते हैं, दैट हैज टू बी इन साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ. तो नो, वास्तु इज डिफरेंट फॉर ऑल द प्रीमाइसेस. आपका प्रोफेशन, आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, पॉडकास्ट यू आर टारगेटिंग मासेस. मैं यहाँ बैठी हूँ, आपका काम, आप ये चाहोगे कि आप मैक्सिमम लोगों तक रीच पहुंचा. सो फॉर यू, फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन, ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ईस्ट इज द जोन ऑफ कनेक्शंस. तो आपके घर में भले आपका स्टडी टेबल में कहीं और दे दूं, लेकिन यहाँ पे आपका ईस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. So it is very important because this is something very new for me. मतलब मैं भी इतना सोचती नहीं हूँ. See, honestly, no one, India बोलो, outside India बोलो, no one thinks so much about, the place that you buy or the place you are working at और जहाँ पे आप काम कर रहे हो. कोई इतना ज़्यादा नहीं सोचता है. बट ये छोटी छोटी एलिमेंट्स है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इट कैन चेंज योर your life, your business and your personal relationship too. Right? I've heard that people saying, अभी ये spiritually भी बहुत लोग बोलते हैं, घर के बाहर ऊपर मूर्ति होनी चाहिए ना, घर के नीचे खड्डा करके आपको वो क्या डालते हैं, सिल्वर और समथिंग लाइक दैट. हाँ. So I mean, is it that common for everyone? Do we have to do this or do we actually have to approach and take right guidance from the people? So घर के बाहर भगवान को रखना, कोई लोग पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाते हैं, मेजॉरिटी लोग गणपति जी को बिठाते हैं घर के डोर के ऊपर. फॉर मी, आई एम नॉट इन अग्रीमेंट टू दिस बिकॉज भगवान दरबान नहीं है, तो हमने उन्हें क्यों अपने घर के बाहर एक रक्षक की तरह, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. सो इफ यू आस्क मी, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ पुटिंग गॉड्स आइडल आउटसाइड. चौखट के नीचे चीजें जो बरी करते हैं, दैट आई विल नॉट गेट इन टू, बिकॉज क्या होता है, हर कास्ट में, हर रिलीजन में
हर सेक्ट्स में सबका अलग अलग बिलीफ होता है. जब मैं भी वास्तु करती हूँ, कोई मुझे बोलता है कि भाई हम चौखट के नीचे ये 9 रत्न डाल रहे हैं, एक चांदी का ये डाल रहे हैं, ठीक है, आपको जो आपके बड़े बुजुर्ग बोले आप करो. Correct. So if I want to buy, say, a new office, okay, this is for anyone and everyone. If I want to buy a new office, what things I should not do when I want to pick and choose a particular property? ओके, सो अभी तक हम घर के अंदर की बात कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट. यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आर सराउंडिंग्स ऑल्सो मैटर. यू गोइंग फॉर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी, और अगर आपको अंदर प्रिमाइसेस में, बिल्डिंग प्रिमाइसेस में जाके ही अगर आपको पॉजिटिव नहीं लग रहा है, आपको जाते ही बड़ा कचरे का डब्बा दिख रहा है, या फिर कुछ ऐसी अनप्लेजेंट चीजें दिख रही हैं, तो देन इट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट दिस इज नॉट गोना वर्क फॉर यू. Because ultimately, the thing which is not acceptable to our psychology will not work for us. Okay, so that is the first thing that you need to consider. Surroundings are very important. कई बार क्या होता है ना, घर के आजू बाजू, बिल्डिंग के आजू बाजू, you see all this कचराज and all, but as soon as you enter inside the premises, you get to feel that fresh air and everything, and people end up buying it. Okay, and then all of a sudden something happens and a lot of changes arises. So during that point of time, people try and avoid the intuitions that they get. And I would like to say something to them. So regular cleansing of a place is very important. Yeah, see, अब जैसा आपने कहा कि 3 BHK आपको पसंद आया, सब कुछ अच्छा, आपके बजट में भी बैठ रहा है, बच्चों को पसंद है, ठीक है. अगर सामने डंपिंग यार्ड है तो अब नहीं, आप उसको कितना कर लेंगे हम मुंबई के शहरों में, इस तरह की जगहों पे. तो ऐसे में हाउस प्यूरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेगुलर बेसिस पे क्लेंजिंग, सॉल्ट मॉपिंग, देन कैम्फर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट. कैम्फर का यूज करना, छोटी छोटी डेली अगरबत्ती करना. बेल का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है. मंदिर की जो घंटी रहती है, वो घंटी जब हम बजाते हैं, आप बिलीव करेंगे हमारे सारे 7 चक्रा उस टाइम अलाइन हो जाते हैं. तो वही घर में होना भी बहुत जरूरी है. तो जब हम बाहर के एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट अंदर की प्यूरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एलम घर के बाहर लगाना, इट्स अ ब्यूटिफुल रेमेडी. आप जितनी भी नेगेटिविटी बाहर से लेके आए हो, किसी से खिटपिट हुई है या फिर आपका दिन अच्छा नहीं गया, यू विल लीव एवरीथिंग आउटसाइड. Wow, so amazing that you're talking about alum, right? So there are so many different type of products in the market. They say वास्तु के लिए ये चीजें होनी जरूरी है, right? There are a lot of things. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पायरेट की बात करूँ, राइट, पायरेट को एक पर्टिकुलर जगह पे आपने अपने ऑफिस में रख दिया या फिर घर पर रख दिया, यू विल ट्राई एंड अट्रैक्ट लॉट ऑफ अबंडेंस. हाउ रियल इज दैट? इन आइसोलेशन नो रेमेडी वर्क्स. आप पायराइट लगाओ, श्रीयंत्र लगाओ, आप कुबेर जी लगाओ, या फिर आप कुछ भी इंद्र भगवान लगाओ, किसी का वज्र लगाओ, जब तक आपकी चारों दिशाएं, 16 दिशाएं फॉर दैट मैटर, अलाइन नहीं होंगी, तब तक कोई भी रेमेडी वर्क नहीं करेगी. ये जो 3D रेमेडीज होती हैं, जो आर्टिफैक्ट्स या फिर आपके डेकोर आइटम्स, हाथी, घोड़े, ये सब जब तब काम करते हैं जब आपकी स्पेस बेसिक वास्तु अलाइंड होगी, तब. यस. सो एट अ वेरी बिगनिंग, मतलब बिगनिंग में ही जब आप अपना घर खरीदने जा रहे हो, यू शुड मेक श्योर दैट यू हैव एन एक्सपर्ट अलोंग विद यू. Otherwise, then you have to pick and choose and try and do this fixes वाला. Yes, yes. तो जैसे हम लोग रफू करते हैं ना, वैसे उस तरीके से ही आपको काम करनी चाहिए. So this has been a very very, I can say, बहुत ज़्यादा learning मिली है मुझे, understanding about. I'll definitely come to you and take some sessions for my office as well. But do you really think that if your house is not vastu aligned, every person in the family might go through some mental issues or emotional traumas or any kind of issues in terms of loans or liabilities or whatever it may be? So, yes and no. Yes, why? Because अगर तकलीफ है तो सिम्टम तो आना ही है. No, because हर किसी को नहीं आएगा और समय का भी कुछ पता नहीं है.
अब फॉर एग्जाम्पल आपने मेंटल इशू की बात की या इमोशनल स्ट्रेस की बात की. अब मेंटल इशू, स्ट्रेस, ये नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है उससे एसोसिएटेड है. वैदिक पर्सपेक्टिव से देखें, ये वास्तु पुरुष का सर है. ओके, तो अगर उनके सर के ऊपर हमारे घर में कोई भी वास्तु दोष होगा तो हमारा सर कैसे सही तरह से काम करेगा. And it can result into a small headache to cancer, to some neurological disorder, to some brain stroke, but the severity and the intensity can differ. और जरूरी नहीं है आज आप 20 साल से एक घर में रह रहे हो और सडनली आपको माइग्रेन को किसी का इश्यू डेवलप हो गया. 20 साल से नहीं है, सडनली हो गया. मैं आती हूँ पिक्चर में, माइग्रेन, हाँ नॉर्थ ईस्ट में आपके किचन है, आपने वहां स्टोर रूम बनाया है, इसलिए आपको माइग्रेन. अब क्लाइंट तो बोलेगा ना यार 20 साल से तो मुझे कुछ नहीं हुआ, अभी क्यों हुआ. आपकी जो दशा है, हो सकता है वो जुपिटर की दशा चल रही हो, कुछ नीच दशा चल रही हो, तो यहाँ पे थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल भी एस्पेक्ट देखना पड़ता है. दो आई डोंट वांट टू डाइवर्ट टू एस्ट्रोलॉजी राइट नाउ, बट वो भी मैटर करता है. एक और कॉमन क्वेश्चन जो मेरे से क्लाइंट्स पूछते हैं कि मैम इस रो में 50 फ्लैट हैं, हमारी 50 माले की बिल्डिंग है, सबके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो क्या सबको सर में दर्द है. नहीं, सबको सर में दर्द नहीं होगा. किसी को लैक ऑफ क्लैरिटी होगा, किसी को साइनस होगा, किसी को हेडेक होगा, किसी को माइग्रेन होगा, किसी के घर में हो सकता है ऑटिज्म के साथ बच्चा पैदा हुआ, किसी को ADHD हो सकता है, किसी को मेमोरी लॉस हो सकता है, किसी को पार्किंसन हो सकता है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है. हर घर में सिम्टम अलग मिलेगा और अलग समय पे मिलेगा. Okay. But it will happen. It will happen or it has happened earlier. Oh. Yes. So it is so dangerous. It is, see, dangerous, yes, in a common layman word, but I would introduce it as an awareness. Yeah, it has to be. Yeah. Because I feel कि अगर एक चेंज की वजह से अगर आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो क्योर हो सकती है, तो क्यों नहीं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक प्रिकॉशंस, राइट. लोग खुद को कुछ होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट. सो व्हाई नॉट go to a vastu consultant who can help you from day one to fix your entire house and make it happen. So it's so coming to back to this mental issues, right. जहाँ पे घर में अगर वास्तु अलाइन नहीं है तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. So I was going through this Burari case, okay, where entire family got affected. So I really want you to throw some insights on that. Coincidentally, I have been doing a lot of research on this. Burari case, a mass suicide. It is still a question whether it was a suicide or a murder or a what do you call it, accidental death. So when I was going through the documentaries, the newspaper articles, and I found out that ये बहुत समय से चला आ रहा है. इसका ललित भाटिया, who is the main mind behind all this, and everybody else in the house started following him blindly. He met with an accident during his college days, and उनका major जो area effect हुआ था because of accident was his head, brain. Okay, it took him a lot of time to come out of it. उसके बाद उनके साथ एक उनके जो जिस दुकान में वो काम करते थे वहां पे भी उनके साथ सिमिलर एक्सीडेंट हुआ था. पेमेंट्स को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, एंड देन अगेन ही हैड अ हेड इंजरी. हिज वॉइस वेंट अवे. That particular time, doctor had suggested, because he went into trauma, doctor suggested to consult a psychiatrist. But हमारे इंडिया में तो ये टैबू है ना कि साइकियाट्रिस्ट पागल थोड़ी हो गए हैं. So it was left unattended. Then it took, और ज़्यादा सिवियर हो गया, साइकोसिस हो गया, डिसएसोसिएटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको हम मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं, वो हो गया. सो एवरीथिंग जस्ट एक के बाद एक ट्रिगर होती गई. नाउ कमिंग टू वास्तु एंगल टू इट, ड्यूरिंग माई रिसर्च आई फाउंड आउट कि उनका जो पेट डॉग था, उसका जो सेटअप था, जो केनल था, वो
नॉर्थ ईस्ट में था, उसका खाना पीना, टॉयलेट एक्टिविटीज, एवरीथिंग was happening in the northeast direction. Now, northeast being the head of the Vastu Purush, the most purest zone of any premises, was full of dirt. तो जब वो सही नहीं होगा तो इंसान का दिमाग कैसे सही काम करेगा, और उसमें और ज्यादा घी डाला उनके इंसिडेंट्स ने. There were few entrances in the house which lead to accidents, which lead to murders, which lead to deaths. Their kitchen was in southwest. तो अगर देखें कि मेल मेंबर ऑफ द हाउस इज गेटिंग अफेक्टेड, पहले उनके फादर की डेथ हुई, फिर ललित के ऊपर पूरा ये भार आ गया. सो डॉट्स कनेक्ट होते हैं, वास्तु पर्सपेक्टिव है. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, बट I can see some vastu logic behind all these. I believe that there might be lot of cases जो ऐसे हुए रहेंगे, right? If I talk about Sushant Singh Rajput, I came across one reel जहाँ पे astrologically या फिर numerologically someone was saying that it's not kind of like suicide or something like that. So I personally believe that something must be disaligned. As you always say that all the spaces give signal, और अगर वो अपने सिग्नल को राइट टाइम पे नहीं समझा, then it might affect the occupant of that house. So would like to say something on that. Yes, हर जगह, जैसे अब हमें हार्ट अटैक आने वाला होता है, आजकल तो इंस्टाग्राम पे इतनी अवेयरनेस हो गई है कि 10 साइंस इफ यू एक्सपीरियंस फॉर पास्ट 1 मंथ में, अगर आप फील कर रहे हो तो इट्स अ साइन कि कुछ हार्ट में इशू है. तो इसी प्रकार हर जगह भी हमें एक सिग्नल देती है. एंड आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ अलाइनिंग विथ यूनिवर्स, और यूनिवर्स हमें हर अच्छे बुरे का सिग्नल देता है. जब भी किसी घर में आपको ये लगे कि यार हमेशा खिटपिट ही होती है, या फिर मुझे घर जाने का मन नहीं करता, मैंने अभी अभी नया घर बनाया लेकिन मेरा मन ही नहीं करता, जाता हूं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, डलनेस लगे, हैवी लगे खुद के घर में, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हो, रिकरिंग हेल्थ इश्यूज, आज बेटे को जुकाम हो गया तो आज माँ को पेट में दर्द हो गया, तो ये सब साइंस हैं जो आपका घर आपको दे रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग, प्लीज हेल्प योरसेल्फ, हेल्प मी, अलाइन मी. Correct. So what are the procedure that you consider when you try and consult any kind of occupant or office premises or construction site? So since we work on logical scientific vastu, we do not work without a layout of the house. Yes, yeah. हम वो बाबा जी वाला काम नहीं करते कि कंपास लेके पहुंच गए और चक्कर लगा रहे हैं, ये कांच तोड़ दो, ये दरवाजा निकाल दो, इसको बंद रखो, इसको खोल दो, ये हटाओ वो हटाओ, नहीं. First and foremost thing for the analysis of any kind of property is the layout. लेआउट आ जाने के बाद वी सेट आर वास्तु चक्र ऑन इट. वी टेक द हेल्प ऑफ गूगल अर्थ प्रो टू फाइंड द डिग्रीज कि हाँ, वी नीड टू फाइंड कि एंट्रेंस कहाँ फॉल हो रही है. तो इट्स अ नासा अप्रूव्ड साइट, वो हम रेफर करते हैं. वी सेट आर वास्तु चक्र with the help of AutoCAD. Again, not manually, not with Corel, not with any other XYZ softwares. AutoCAD, the most authentic software. वो सेट करने के बाद we see कि क्या problems हो रही. Then I sit with the client for hours and hours with each and every member of the house to understand their perspective, their issues. आप बोलोगे बेटा बात नहीं सुनता, पढ़ता नहीं है, लेकिन बेटा बोलेगा मम्मी को टाइम नहीं है, मैं कैसे पढ़ाई करूं. सो एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू द सेम प्रॉब्लम. सो आई लव टू सिट एंड अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी, their angle, their perception towards the situation, and then I make a report, and then I again sit with them to discuss it, help them with the remedies कि कहाँ पे क्या करना है. लाइफ चेंज, कुछ रेमेडीज मैं बिलीव करती हूँ कि लाइफ स्टाइल चेंज करने में आप इनकॉर्पोरेट करो. And then first follow up after the completion of all the remedies, it's after 31 days. 31 days के बाद हमारी टीम से एक कॉल जाता है. वी अंडरस्टैंड कहाँ पे सुधार आया, कहाँ अभी भी स्कोप है वर्क करने का, बिकॉज एज आई सेड वास्तु इज अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग.
वास्तु के बाद देवता वास्तु आता है, डिपेंड्स फ्रॉम प्रेमाइसिस टू प्रेमाइसिस, कितना कॉम्प्लेक्स है, तो इट इज अ प्रोसेस, बट आई एम इन कांस्टेंट टच विद द क्लाइंट. Wow. So how long do you sit with that particular client? सी आई सजेस्ट माई क्लाइंट कि अगर 2 साल बाद एक लाल रंग का वाज भी खरीद के लाओगे ना, तो एक फोन जरूर कर लेना या मैसेज छोड़ देना कि मैम ये लाल वाज लेके आए, इसको लगाएं कहाँ पे. बिकॉज क्या होता है, आज मैंने आपका घर ठीक कर दिया, कल आपको किसी ने उठ के एक लैंप गिफ्ट कर दिया, फोटो फ्रेम गिफ्ट कर दिया, अब आपके पास एक लाल घोड़े, 7 लाल घोड़े का पेंटिंग आपको किसी ने गिफ्ट कर दिया, और वो अगर आपने नॉर्थ में लगा दिए, तो जो मैंने मिलके मेहनत की थी वास्तु को ठीक करने में, वो खराब हो जाएगी, आपको अपॉर्चुनिटीज आना बंद हो जाएंगी. That's true. That's true. See, as I said, like in one of our conversation, जहाँ पे जो इतने सारे products वास्तु related आ रहे, 7 horses is one of them, है ना? Pyrite is one of them. Then we have that pyramid, that is one of them. तो लोग सोचते नहीं है ये लगाने के पहले, and definitely it may affect to some other level. So it's very important to understand कोई भी product purchase करने के पहले. But with this whole digitalization, there is a lot of phobia which has been created in terms of a purchase, right? Buying that particular product, Vastu related product. Would you like to throw some insights on that and breaking that myth of, you need to buy this product if you want a lot of abundance in your life? I am not at all in favor. In fact, I would like to say I'm against all this. Until unless you find a proper consultant, an expert, कोई भी हो, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चाहे वास्तु कंसल्टेंट हो, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, जब तक आपको कोई एक्सपीरियंस कंसल्टेंट नहीं मिल जाता गाइड करने के लिए, प्लीज डू नॉट पिक अप एनी रैंडम रेमेडीज फ्रॉम इंटरनेट. इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. I have seen cases where people have almost lost their lives just because introducing pyramids in their houses. Yes. And I don't believe in selling products. I don't believe in promoting any kind of product. अगर मुझे कहीं पेंटिंग लगवानी भी है, I will provide them a soft copy. आप फ्रेम कराओ, लगाओ. We keep stock. लेकिन आपको जहां से सस्ता पड़े आप वो काम करो. सामान बेचने का काम हमारा बिल्कुल भी नहीं है. So how aligned is architecture and Vastu? It's, you know what, the disappointment is that people think that they are two different fields. We are from one fraternity, we are from same community, actually we are one. Yeah. आर्किटेक्ट्स को पुराने जमाने में वास्तु शास्त्री, वास्तुकार ही कहा जाता था. If you go back to Harappan civilization, Mohenjo-daro, our palaces, forts, temples, everything is designed as per Vastu. बट प्रॉब्लम कहाँ आई, जब मॉडर्नाइजेशन हुआ, जब फ्लैट्स बनने लग गए, आड़े टेढ़े कट्स एक्सटेंशंस के साथ घर बनने लग गए, वहां पे आके हम नेचर में जो बैलेंस है, जो पंच तत्वों का जो बैलेंस है, उसको हम कहीं भूल गए. करेक्ट. और सारा मेस उस भूलने की वजह से वो अलाइनमेंट जो है विद इन यू, बिटवीन यू एंड योर स्पेस, वो इम्बैलेंस हो गया. So architects, Vastu, interiors, Vastu is nothing but space planning, keeping the 5 elements in mind. So it's one and the same thing, I would say. You spoke about Panch Tattva. You have named your company as well, Panch Tattva. So ये thought कब आया that, I have to keep my company's name as Panch Tattva? It was the first thought. And it was very convincing. Because वही तो हम कर रहे हैं, चाहे मैं घर डिजाइन करूं या फिर मैं किसी का वास्तु करूं, मुझे इन 5 तत्वों को ही बैलेंस करना है, बस. So very rightly said, it's very important to align these 5 elements in your house, your office, or wherever you are. But before that, it's very important to understand the concept जो आप नहीं कर सकते. I don't know, for everything there is a subject matter expert. अगर आप उनको अप्रोच करोगे तो आपका काम काफी कट शॉर्ट हो सकता है और आप ज्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हो अपने ग्रोथ के टूवर्ड्स. Right. So I have seen, like, one of my friend, I really want to understand this. So one of my friends, she always keep complaining,
राइट, मुझे घर में ये प्रॉब्लम है, मुझे घर में वो प्रॉब्लम है. मोस्ट ऑफ द वुमेन्स इन इंडिया आर राइट. कभी कुछ हो या ना हो, पर उनके दिमाग में वो इतना प्रेशर होता ही रहता है, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा. डू यू रियली थिंक दैट दैट इज ऑल्सो समवेयर अलाइन टू द स्पेसेस दैट यू हैव क्रिएटेड? सो एक तो नेगेटिविटी इज वन मेजर एस्पेक्ट टू दिस होल सिचुएशन. और होता क्या है, जब भी हम नेगेटिव बात करते हैं ना, तो यूनिवर्स हमें वो ही वापस बाउंस करके देता है, क्योंकि हम बोल ही वो ही रहे हैं. नाउ एज फार एज वास्तु इज कंसर्न, especially women, if they have any issues related to their temperament, okay, anger issues हो गए, dominance हो गई, anxiety हो गई, restlessness हो गई, तो साउथ ईस्ट इज वन जोन which we need to check. And also, if you have any reproductive system issue, men, women, men when it comes to semen count while you are trying to conceive a baby, women when it comes to your uterus, your ovaries and all, that is also related to southeast. तो अगर मैं इसको medical perspective से देखूं कि that female is suffering because of some hormonal imbalance also, then southeast is one zone which we can check. Apart from that, if it is just anxiety, overthinking, there is one more zone east of southeast which needs to be checked, whether she's spending a lot of time over there. That is why it is leading to these overthinking issues. You're talking about medical perspective, right? घर में like there are old people staying at home, बकायदा बहुत सारी medicines आती है, right? So do we have kind of position to keep your medicines as well, or you can just randomly keep anywhere and everywhere? So yes, there is a particular position north of northeast, जो भगवान धन्वंतरी की दिशा है, वो सबसे अच्छी दिशा है दवाइयाँ रखने की. बट हमारे इंडियन फैमिलीज में ना क्या आदत होती है, हम भर भर के दवाइयाँ स्टोर करते हैं, हम टाइमली चेक नहीं करते कि क्या एक्सपायर हो गया है, उसे निकाल दो, अरे ये तेल पड़ा है, तेल थोड़ी एक्सपायर होता है, चलने दो. सो वी शुड नॉट कीप अननेसेसरी मेडिसिन्स, स्टॉक नहीं करना चाहिए. बट हाँ, जो भी जरूरत का है आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखो. एंड इफ देर इज अ डिस्कम्फर्ट कि हर बार उठ के जाना पड़ता है, तो आप एक छोटा सा डब्बा वीकली मेडिसिन का बना के अपने पास रख लो. बट जो आपका स्टॉक है, मेडिसिन का स्टॉक है, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, वो आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखो. यहाँ पे मैं एक व्यूवर्स को एक छोटा सा टिप देना चाहूंगी. अगर घर में किसी को भी हेल्थ इश्यूज हैं, रेकरिंग हेल्थ इश्यूज है, ओल्ड एज है, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की दिशा, जिसे हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, वहां पे एक चांदी के ग्लास में या स्टील के ग्लास में पानी रखिए. जो भी घर में बीमार व्यक्ति है, बच्चा है, उसको उसमें से ही पानी पिलाइए. आप उसे रीफिल कर दीजिए, लेकिन उसमें से ही उनको पानी पिलाइए. साथ ही भगवान धन्वंतरी की एक फोटो आप उस जोन में लगाइए, या फिर डॉक्टर गणेशा की फोटो भी लगा सकते हैं. सो ऐसा करने से आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट जरूर दिखेगा. Wow, that's so deep and it's so amazing that छोटी छोटी रेमेडीज भी कितना चेंज लेके आ सकती है. I really want to understand that at what stage vastu should be integrated. Vastu should be integrated right at the time of selection of the property. Yeah, because what happens is, when I'm with a client, I understand his nature of work, the family background, the health issues. I'm in a better position to suggest him or her a place which is not going to worsen the existing situation. For example, a couple came to me saying कि we have just shifted, we are looking for a house, हमारा जॉब भी अभी फिक्स नहीं हुआ है, बट हमें रहने के लिए जगह चाहिए, हेल्प अस. तो मुझे पता है कि उस इंसान को अभी सबसे पहले अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसे अच्छी जॉब चाहिए. आई कैन नॉट मेस अप by taking by approving a place which has a toilet in the north. हालांकि the north toilet is treatable, 100% treatable, but at that point of time I will not risk, क्योंकि उसका सिचुएशन उस टाइम ऐसा है कि मुझे उसको चांस लेना ही नहीं है. So do you really think that if your house is not vastu aligned, it affects your decision making as well? Yes, I do, because it is a life lesson for me. मेरी जर्नी ही वहां से स्टार्ट हुई है, and it is tried and tested.
इट इज़ नॉट कि किसी ने सिखा दिया, मैंने सीख लिया और उसे अपना बिजनेस बना लिया. आई हैव ट्राइड इट ऑन माई सेल्फ. इट हैज़ वर्कड फॉर मी. I have flourished. I have succeeded in whatever I have done. So yes, for me, my perspective, Vastu really, really works. If it is done in a beautiful way, it can change your life 360 degree. So what things we need to keep in a house to, like, improve your decision making? Okay. Decision making सबसे पहले हैम्पर होती है क्लटर से. इसमें वास्तु एंगल है भी और ना भी, बट इट इज अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन प्रैक्टिस विच एवरीबडी शुड डू. बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि अगर मेरे घर में जगह नहीं है तो नई अपॉर्चुनिटीज दरवाजे पे खड़ी हैं, तो वो अंदर आएंगी कैसे? तो अपने घर का, अपने दिमाग का, अपनी सोच का हम क्लटर जब निकालते हैं ना, तो अपने आप चीजें नेचुरली फ्लो होना चालू हो जाती है. अपने आप दिमाग खुलता है, अपने आप डिसीजन मेकिंग क्लियर होती है. Correct. That's very important, because generally I've seen Indian houses, they keep filling things, और स्टोर तो इतना भरा होता है ना, जैसे कि वो यूज होने वाला है, जबकि वो पूरी जिंदगी यूज नहीं होते, वो वहां का वहां ही है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रीड ऑफ दैट क्लटर दैट यू क्रिएट इन योर हाउस, सो दैट you can get and attract more number of opportunities. So with this point, I really want to understand what not to do in your house to keep yourself, aligned with whatever opportunities coming your way. So first of all, since now our builders, our architects, they give master bedroom in the southwest, thinking कि वो owner of the house है तो master room होना चाहिए, and with that they make a mistake of giving big balconies, and with big balconies you end up introducing plants, green grass carpet. So southwest में plants is a big no. सेम विथ वेस्ट में भी प्लांट्स नहीं होने चाहिए. साउथ वेस्ट में प्लांट्स आपकी स्टेबिलिटी को खराब करते हैं. वेस्ट में प्लांट्स आपने जो भी एफर्ट डाला है उसका आउटपुट आने में टाइम लगता है, बहुत तकलीफ होती है. दैट इज वन थिंग. नॉर्थ जो दिशाएं हमें खुली खुली रखनी चाहिए, हवादार रखनी चाहिए, नेचुरल वेंटिलेशन रखना चाहिए, वहां पे स्टोर रूम मत बनाओ, बिकॉज दैट ब्लॉक्स योर माइंड. ट्रू. ईस्ट, ट्राई टू कीप इट ओपन. वहाँ पे मैक्सिमम बच्चे टाइम स्पेंड करें, ओल्ड जो हमारे घर के सदस्य हैं वो टाइम स्पेंड करें. तो ये छोटी छोटी चीजें, वास्तु नो वास्तु, ये छोटी छोटी चीजों से यू कैन एटलीस्ट मेक श्योर दैट योर लाइफ goes smooth. I really want you to burst this myth कि owners को basically बैठना कहाँ चाहिए, because there are a lot of, I can see day in and out lot of reels on, where basically their position should be, and I tend to believe in that, right? But sometimes it may work, it may not work for you. So what should be the right position for them to sit? So yes, you are right, it's a myth. और myth ये है कि majority लोगों को ये लगता है कि owner should be sitting in the southwest direction, और या उनका केबिन साउथ वेस्ट में होना चाहिए. नाउ इसमें एक ये कैच है कि अगर ओनर इज द ओनली होल एंड सोल ऑफ द एंटायर बिजनेस, कि काम भी वही कर रहे हैं, क्लाइंट से भी वही मिल रहे हैं, डील भी वही क्रैक कर रहे हैं, देन इट मेक्स सेंस कि आप उनको साउथ वेस्ट में बिठाओ. बट अगर ओनर हफ्ते में एक दिन अपने ऑफिस में जाता है और बाकी देयर इज सम अदर मैनेजर और सीईओ, समवन एल्स हु इज लुकिंग आफ्टर द एंटायर business, then that person should be sitting in the southwest. Okay. Yeah, so it's a very big myth कि ओनर है तो साउथ वेस्ट का केबिन बना दो. इट्स नॉट ट्रू. साउथ वेस्ट इज द जोन ऑफ स्किल्स, और अगर वो केबिन अगर हफ्ते में एक बार ही खुलेगा तो यू वेस्टिंग ऑन दैट इम्पोर्टेंट जोन. यू रादर मेक द स्किल्ड पर्सन सिट ओवर देयर. True. So that is how it will be. Yes, absolutely. We were talking about a skilled person sitting at particular place. Tell me one thing, where basically this marketing and sales team should sit. सो सेल्स मार्केटिंग की टीम के लिए नॉर्थ वेस्ट इज़ वेरी गुड, क्योंकि उनका टाइम सारा टाइम घूमने का होता है. फ़ोन कॉल्स करो लोगों को, अपना पैकेज समझाओ ये. सो नॉर्थ वेस्ट इज़ अ वेरी गुड डायरेक्शन फॉर मार्केटिंग सेल्स पीपल. दे शुड फेस ईस्ट while they are talking, because they are ultimately trying to build up connections. Correct. Very rightly said. और सबसे important department, finance.
जो पैसे को संभालता है, अगर वो डिसअलाइंड हो गया तो पूरी तुम्हारी बिजनेस ही ऊपर नीचे हो जाएगी. सो व्हाट बेसिकली यू सजेस्ट फॉर देम? पैसे की जगह है वेस्ट साउथ वेस्ट. वेस्ट भी अच्छी जगह है. तो फिनेंस डिपार्टमेंट, सीए हुए, अकाउंटेंट्स हुए जो इन हाउस हमारे ऑफिस में रहते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये सब आप वेस्ट साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट में इनकी सीटिंग दे सकते हो. अगेन द फेसिंग शुड बी ईस्ट, मैक्सिमम नॉर्थ. ओके. सो नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि आपको जब आप ऑफिस बनाते हो तो सिर्फ ऑफिस नहीं बनाते हो, आपको सारे स्पेसेस ऐसे बनाने चाहिए जो अलाइंड हो हर एक डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, राइट? एज यू सेड इन वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्वर्जेशन जहाँ पे आपने बोला ओनर खाली साउथ वेस्ट में बैठेगा, बट वो सीट अगर खाली रहेगी तो any which ways you're not achieving anything. So it's very important. Now talking about manufacturing. Okay, manufacturing is again a big vertical. लोगों ने बड़ी सी जगह ले ली, वहाँ पे मशीनें बिठा दी. Do you really think that if it is not again a vastu aligned, it affects the entire business? Yes. So होता क्या है, whenever a client comes to me for his factory or a warehouse or a manufacturing unit or any commercial property for that matter, there are just two zones which I check. On problem वहीं निकलती है, और वो दो जोन्स होते हैं साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट. साउथ वेस्ट में जब भी आप कोई गड्ढा बना देते हो, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक के लिए हो, लिफ्ट के लिए हो, आपकी सर्विस, ये आपके जो स्टैक पार्किंग के लिए आप गड्ढा बनाते हो, शाफ्ट बनाते हो, वहीं आपका काम बंद हो जाता है. साउथ वेस्ट में गड्ढा इज अ बिग नो नो, एंड दैट इज वन रीजन वाई मेजॉरिटी जहां पे भी ब्लॉकेजेस आते हैं ना कमर्शियल प्लेसेस में, वो इसी कारण आते हैं. और दूसरा साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा है. मेनी अ टाइम्स आई हैव फाउंड कि वहां पे ब्लू कलर का वाटर का ड्रम पड़ा रहता है, या फिर वहां स्लोप आ जाती है, रिसेस्ड ग्राउंड आ जाता है. दैट इज ऑल्सो वन रीजन जहां पे काम चलते चलते रुक जाता है. इसके अलावा अगर हम मशीनरीज की बात करें, मशीनरीज बिकॉज दे आर लोडेड, दे आर हैवी, दे आर इन टन्स, तो साउथ वेस्ट इज द आइडियल जोन टू कीप मशीनरी. तो इस तरह की चीजों को अगर बेसिक बेसिक भी ध्यान रखेंगे. नॉर्थ ईस्ट है, पानी है, तो आपका बोरिंग, आपका पानी का मशीन नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए. पिट रिलेटेड एक्टिविटीज शुड ऑलवेज बी इन नॉर्थ ईस्ट. तो इन चीजों से यू कैन एटलीस्ट बेसिक अलाइनमेंट यू कैन अचीव. एम्प्लॉयज इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, है ना? कोई भी इंडस्ट्री में बोल लो, वेदर इट इज इंडस्ट्रियल हो, वेदर इट इज any kind of profession, employee is a big problem. They come and go, they come and go, they come and go. Sometimes तो बहुत frequent होता है. किसी जैसे I have this friend of mine who is into manufacturing. Okay, he is struggling a lot to keep his employee. No, बहुत frequently निकल जाता है. So do you have some kind of remedies for them? Yes. So employees का zone directly associated है north west से, because north west is the zone of support. चाहे वो हमारे लिए बैंक सपोर्ट हो, एम्प्लॉय सपोर्ट हो, नॉर्थ वेस्ट इज द जोन विच यू शुड चेक अगर आपका स्टाफ रिटेंशन प्रॉब्लम हो रहा है. उसका जो ऑपोजिट जोन है साउथ ईस्ट, वो भी चेक करना चाहिए. ये हमारे वास्तु में एक प्रिंसिपल है दैट यू शुड ऑलवेज चेक 180 डिग्री. तो अगर दोष नॉर्थ वेस्ट में नहीं निकला तो हो सकता है साउथ ईस्ट में निकल जाए. तो वो दिशा, वहां कोई कट होना, एंटी कलर होना, जैसे वहां पे व्हाइट ग्रेज अलाउड है, वहां पे रेड आ गया, अगर ग्रीन आ गया, तो वो आपके सपोर्ट सिस्टम को हिला देगा. एंड दिस सपोर्ट सिस्टम इज नॉट जस्ट अबाउट द स्टाफ, इट इज ऑल्सो अबाउट द लोन्स विच यू अप्लाई फॉर. बैंक सपोर्ट, बैंक इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो भी सपोर्ट आता है वो नॉर्थ वेस्ट की दिशा उसे गवर्न करती है. Okay. One last question I have. So people with lot of liabilities, जैसे आपने लोन की बात करी, with lot of liabilities, right? वो लोग मतलब निकल ही नहीं पाते कभी कभार वहां से. तो would you like to say something to them or show them So some kind of remedy liability, that can help them? debts, this is directly associated with the southwest direction of your house. साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारी स्टेबिलिटी को गवर्न करता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप्स में हो या हेल्थ में हो. जहां पे भी आप अपने कर्जों से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, दैट मीन्स योर फाइनेंसेस आर नॉट स्टेबल. आपने पूरी जिंदगी कमाया लेकिन कर्जे ही चुकाते रहे, तो इसका मतलब है या तो आपके साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है,
या वहाँ किचन है, यहाँ टॉयलेट है, उसको इमिडिएटली रेक्टिफाई कराओ, बिकॉज साउथ वेस्ट के दोष का कोई इलाज नहीं है, आपको उससे बाहर ही निकलना पड़ेगा, उस दिशा को रीअलाइन ही करना पड़ेगा एज पर वास्तु प्रिंसिपल्स। या सो यू आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स से मुझे ये याद आया कि आजकल लोग है ना वो नकली प्लांट्स भी बहुत ज्यादा रखते हैं। सो डू यू रियली थिंक दैट इट्स गुड फॉर योर लुक, नो हाउस लुक, बट will that bring any kind of positivity in your house? आपकी बात में ही आपका जवाब था। प्लांट्स, डेड प्लांट्स, आई कॉल इट डेड प्लांट्स बिकॉज वो सिर्फ एक शो पीस है एंड दे एब्जॉर्ब नेगेटिविटी। क्या आप उनको क्लेंस कर रहे हो, धो रहे हो, और एक्चुअली वहां तक पहुंचने वाली बात ही नहीं है। नेगेटिव योर आर्टिफिशियल प्लांट्स इज जस्ट अ सोर्स ऑफ एब्जॉर्बिंग नेगेटिविटी, सो अ बिग नो नो। एक भी नहीं, दो भी नहीं, अ बिग नो नो। So you will see lot in my office. आई एम श्योर अब आप उसको निकाल दोगे। I read this somewhere that it brings lot of negative, Yes, it does. It does. absorbs lot of negativity. Thank you so much. We had a very candid conversation, and now we are heading towards most important element of our show, that is rapid fire round. So are you up for it? So whatever questions I'm going to ask you, you need to answer in one. One word. Okay, I will try. All right, then let's begin. One Vastu myth you want to bust. South entrance is good. It is very good for builders. S3, S4 is good for builders. Very good. Ideal sleeping direction for deep rest. South. Bed also in south and your head also in south. With this, I really want to understand, does your sleeping direction affect your relationship? Sleeping direction, yes. Sleeping direction, orientation नहीं, but जिस दिशा में आप सो रहे हो. For example, there are few zones in Vastu. For example, south of southwest, which comes in between south and southwest. जब वहाँ पे कोई couple सोता है, तो whatever they put in their relationship, whether it is emotion, their time, their energy, everything goes into the drain. Similarly, northeast, जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, northeast is not recommended for a couple because it is a most spiritual zone. Oh. You tend to go towards spirituality if you sleep in the northeast, which we don't want for a young couple to happen, right? So yes, it matters. Do you really think, I'm asking you more because I really want to understand, right? And it's a lot of married couples, they would also want to know it. Do you really think that, with this kind of remedies, their physical relationship also improvises? इनफैक्ट यंग कपल से थोड़ा पहले जाएंगे, शादी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटे की शादी नहीं हो रही है, तो इसमें भी काफी सारे जोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ न्यूली वेड कपल, देर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन देम, or maybe one of them has had a past, or they're still not comfortable with the marriage. So there is a zone called north of northwest, which comes between northwest and north. वहां पे अगर हम newly wed couple की फोटो लगा देते हैं, तो they tend to get attracted towards each other. If you want to have a baby also, then that's a beautiful remedy. You can put their picture in that particular zone. चाहे उनका रूम आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, doesn't matter. वो पिक्चर वहां रखने से you will see the results. I really want to deep dive. So best direction to sit while working or studying? Studying west of southwest, undoubtedly. Working, work from home है, तो again west of southwest की दिशा अच्छी है, west की दिशा अच्छी है. अगर आप कोई skill में involved हो, तो southwest भी आपके लिए अच्छा है. Okay. A simple way to make the entrance energetically welcoming. Swastik on both the sides of your main door. Okay. So most of the time people shubh labh लगाते हैं. So is it also? Yeah, that also works. Swastik भी अच्छा है. One kitchen mistake people should fix immediately. Black counters in southeast kitchen. सबको पता है साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कि वहां ब्लैक काउंटर नहीं लगाना चाहिए. यूज ग्रीन stone under the hob. What should people avoid keeping under the bed? Oh my god. Junk, wires, old laptops, mobiles, cables.
I can recollect my mother-in-law. She keeps putting a lot of things under the bed. Zone of financial stability. Southwest. Direction to check if money keeps getting blocked. Southeast. Southeast अग्नि की दिशा है, पैसा वहीं से ही रोटेट होएगा, तो Southeast. So thank you so much, Ashiji. We had amazing and very candid conversation, and I've learned a lot today. I'm sure that I'm going to sit back, check this entire podcast, make a lot of changes in my office, in my house, and I know I'm going to consult you. But I really want you to give one last message to all our viewers to consider before even buying a house, or once they have bought that particular property, what all things they need to, consider. Sure. First of all, Vastu is not a tradition. It's a science. It's a logical science. Don't get scared of destruction, demolition. Vastu is a logical science. उस पे बिलीव करो, उसे चैलेंज मत करो. And whatever space you live in, the space talks to you. To listen to it, acknowledge it, work towards it. और जब भी आप कोई नई प्रॉपर्टी देखने जाते हैं तो मेक श्योर आप घर के सेंटर में खड़े होके नॉर्थ ईस्ट देखें, वहां पे कोई किचन टॉयलेट एंट्रेंस ना हो. साउथ वेस्ट देखें, वहां पे भी किचन टॉयलेट एंट्रेंस ना हो, और आपके घर का सेंटर बिल्कुल खाली हो. और जो जगह आपके दिल को अच्छी लगे वो जगह आपके लिए जरूर वर्क करेगी. यू हैव टू हैव दैट फेथ इन द यूनिवर्स. एंड प्लीज डू नॉट फॉलो सोशल मीडिया रैंडमली. डू नॉट पिक अप जस्ट ऐसे ही रेमेडी एंड इधर ये लगा दिया, इधर हाथी लगा दिया, इधर घोड़े. इट इज नॉट गोइंग टू वर्क until unless your space is aligned as per the 5 elements. Thank you so much. It was really wonderful. One last message for our entire platform, Ek Soch, one idea that changed your life. I had a wonderful time with you, and I see you growing. I see in your page you're very, very enthusiastic about what you're doing. I see that passion in your eyes. So lots and lots of blessing to you. May you keep growing. May you keep have nice, recognized, good celebrities sitting in front of you. I already have one. Thank you so much. So yeah, lots of love and blessings to you, and you're doing a wonderful job. God bless you all. Thank you so much. And this entire podcast was kind of a blessing and a lesson for me, because even I have to consider a lot of things, because I am definitely sure that after 1 year I'm going to have a bigger studio and a setup. So before that I'm going to consult you. And to all my viewers, please don't be lazy while inviting a Vastu consultant, because one remedy can change your entire life and entire perspective and the decision making of your entire journey, of your business journey or your relationship. So please don't be lazy in consulting. As Ashi really said, please do not trust on everything that comes on social media. Right, you need to have a right guidance for it. Now after watching this entire podcast, whom to approach if you want to have a Vastu aligned premises. So thank you so much once again. Signing off for today. Ek Soch, one idea that changed your life. See you in the next episode. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.